رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے گلبرگہ ضلع میں شدید ٹھنڈی لہر کے چلتے کیا یلو الرٹ کا اعلان۔ آج اور کل صبح اور رات کے وقت عوام اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ گلبرگہ ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ جوائنٹ ڈائریکٹر سمت پٹیل نے گلبرگہ ضلع کے تمام کسانوں کو جوار کی فصلوں کو نقصان سے بچانے کے لیے دی ضروری ہدایات۔ ریلوے اسٹیشن پر بندروں کی ٹولیاں بنداز گھومتی پھرتی ہوئیں، جس سے عوام میں ڈر اور خوف کا ماحول۔ کرناٹکا اسٹیٹ آنگن واڑی امپلائیز یونین ضلع کمیٹی ممبرز نے آج آنگن واڑی مراکز کو اپ گریڈ کرنے کے مطالبے کے ساتھ کیا طویل احتجاج۔ گلبرگہ سینٹرل جیل سے کڑی سیکورٹی اور انتظامات کے ساتھ کنڑا ایکٹر درشن کے مینیجر ناگراج کو جیل سے کیا گیا رہا۔ بڑے ہی جوشیلے اور پرزور انداز میں ایس ڈی پی آئی کرناٹکا لیڈرز نے چلو بیلگاوی امبیڈکر جاتھا ٹو اڈوپی ٹو بیلگاوی کیمپین کو کیا مکمل اور اپنے مطالبات کو پورا کرنے کی رکھی ڈیمانڈ۔ ایس ڈی پی آئی ڈسٹرکٹ جنرل سیکریٹری سید علیم الہی نے کڑے الفاظوں کے ساتھ امت شاہ پر لگائی پھٹکار۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے گلبرگہ شہر والوں کے لیے اہم اعلان کرتے ہوئے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ گلبرگہ شہر میں آج اور کل 18 اور 19 دسمبر کو بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہوا کولڈ ویو کے چلنے کے امکان کے ساتھ یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے، کیونکہ گلبرگہ ضلع میں ان 2 دن صبح کے وقت اور شام کے وقت شدید سرد ٹھنڈی ہوا کے چلنے کا خدشہ بتایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں کا درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے گلبرگہ کے ساتھ ساتھ یادگیر، رائچور، باگلکوٹ، بیجاپور میں سردی کی شدید اور تیز لہر رات اور صبح کے وقت چلنے کے خطرے کے چلتے عوام سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ رات اور صبح کے وقت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ جی ہاں، اسی لیے ضلع انتظامیہ نے عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد یعنی کہ سورج ڈھلنے کے بعد احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ دیہات میں عوام اور کسان غیر ضروری طور پر 2 پہیہ گاڑیوں پر باہر نہ نکلیں۔ ساتھ ہی عوام سے کہا گیا کہ وہ زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی رہے، خاص طور پر وہ لوگ جو روزانہ صبح سویرے واکنگ کرنے کے، ایکسرسائز کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ زیادہ احتیاط برتیں اور گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ساتھ ہی چھوٹے بچوں پر بھی خاص دھیان دینے کی یہاں پر ہدایت دی گئی۔ کسانوں کو بھی مشورہ دیا گیا کہ وہ ان 2 دنوں میں یعنی کہ آج اور کل کھیتوں میں خاص طور پر رات کے وقت نہ رہیں اور دن میں زرعی سرگرمیاں نہ کریں، گرم کپڑے پہنا کریں اور احتیاطی طور پر کاشتکاروں کو پلانوفکس 0.5 ملی لیٹر فی لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کرنے کو کہا گیا تاکہ پڑنے والی فصلوں پر ٹھنڈی ہواؤں کے اثرات کو روکا جا سکے۔ گلبرگہ ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ کے جوائنٹ ڈائریکٹر سمت پٹیل نے ضلع بھر کے تمام کسانوں کو اہم جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا کہ پورے گلبرگہ ضلع میں کسانوں نے جوار کی فصل کو اگایا ہے، جو کہ تقریباً 1.5-2 مہینے کی فصل ہے، لیکن فالا ارنیور کیٹ انسیکٹ کی وجہ سے فصل پر بری طرح سے اثر پڑ سکتا ہے۔ اس سے اس فصل پر غلط ایفیکٹ ہونے کا اندیشہ بتایا گیا ہے، لہٰذا اس فصل پر ایک ضروری سپرے کرنا ضروری اور لازم بتایا گیا، جس کے بعد اس فصل کو نقصانات سے بچایا جا سکتا ہے۔ شہر گلبرگہ میں بڑے پیمانے پر آنگن واڑی ٹیچرز، آنگن واڑی ورکرز نے آنگن واڑی مراکز کو اپ گریڈ کرنے کے مطالبے کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جی ہاں، کرناٹکا اسٹیٹ آنگن واڑی امپلائیز یونین کی ضلعی کمیٹی نے آج شہر میں 1 گھنٹہ طویل احتجاجی مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ آنگن واڑی مراکز کو اپ گریڈ کیا جائے اور آئی سی ڈی ایس کا الگ ڈائریکٹوریٹ قائم کیا جائے۔ بتایا گیا کہ 2018 سے تنخواہ نہ بڑھانے کی گریجویشن گرانٹ بھی جاری کی جائے اور بجٹ میں مزید گرانٹ دینے کی درخواست بھی کی گئی۔ ساتھ ہی بتایا گیا کہ بیلگام اور تمام ضلع ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ کے دوران اسی مطالبے کے ساتھ احتجاج کیا جائے گا۔ یہاں اس موقع پر بڑی کثیر تعداد میں لیڈیز، خواتین، عہدیداران اور آنگن واڑی کارکنان موجود دکھائی دیے۔
गुलबर्गा शहर का सेंट्रल जेल जो कि अपने कैदियों के नित नए कामों और कारनामों के चलते काफी सुर्खियां बटोर चुका है, वही सेंट्रल जेल से हम आप सभी तक अहम जानकारी फराहम कर रहे हैं। जी हाँ, रेणुका स्वामी कत्ल केस के चलते 11वें मुलजिम और कन्नड़ा अदाकार दर्शन के मैनेजर नागराज को इस पीर की शाम गुलबर्गा सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। बता दिया जाए कि नागराज को दर्शन और दीगर मुलजिमान के साथ शाही सुलूक करने के इल्जाम के बाद 1 सितंबर को गुलबर्गा सेंट्रल जेल में मुंतकिल किया गया था, जबकि वो रेणुका स्वामी कत्ल केस के सिलसिले में पारापन्ना अग्रहारा जेल में कैद था। लिहाजा दर्शन समेत दीगर 8 मुलजिमान को 3 दिन पहले इस केस के सिलसिले में जमानत मिल गई है। मुलजिमान में कन्नड़ा अदाकार दर्शन का मैनेजर नागराज भी शामिल है। लिहाजा नागराज के कुछ दोस्त और उनके फैमिली वाले इस पीर की शाम को नागराज को लेने के लिए जेल पहुंचे, जिसे गुलबर्गा जेल से रिहा किया जा रहा था। लिहाजा बता दिया जाए कि इसी पेशरफ्त के दरमियान नागराज की रिहाई की इत्तला मिलते ही जेल के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में लोगों के आने और भगदड़ मचने के शक के पेश नज़र बड़े पैमाने पर यहां सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। और दूसरी तरफ जेल के मेन गेट से बाहर आते ही नागराज ने मीडिया के नुमाइंदों के सवालात की परवाह किए बगैर, उनके सवालात का जवाब दिए बगैर एक मुख्तस गाड़ी में बैठकर अंधेरे में गायब हो गया। जैसे कि राब्ता न्यूज के नाजरीन को परसों बताया गया था कि 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक एसडीपीआई पार्टी कर्नाटका ने कैंपेन बेलगावी चलो शुरू किया और इसी कैंपेन के चलते समाजी इंसाफ के लिए उडुपी से बेलगाम तक अंबेडकर जाता टू बेलगावी चलो कैंपेन के तहत एसडीपीआई कर्नाटका लीडर्स का काफिला मुख्तलिफ अजला और असेंबली हलकों का दौरा करते हुए हुबली बेलगाम के स्वर्ण सौदा के करीब पहुंचा और इस जाता को BR भास्कर प्रसाद की कन्वीनरशिप में बड़े ही कामयाब अंदाज में निकाला गया। बता दिया जाए कि इस जाथा में तमाम ऑफिस अमला, एसडीपीआई के रियासती सदर अब्दुल मजीद, जनरल सेक्रेटरी BR भास्कर प्रसाद, अफसर कोडलीपेट, रियासती सेक्रेटरी रियाज कडम्बू, सेक्रेटरी और मीडिया कोऑर्डिनेटर रमजान कड़ीवाल, अमजद खान, दीगर लीडर्स और लोग मौजूद थे। यहाँ पर एसडीपीआई कर्नाटका लीडर्स ने अपने मुतालिबात को बताते हुए कहा कि बेलगाम में हो रहे कर्नाटक असेंबली के सरमाई सेशन में अगर एसडीपीआई के मुतालिबात को पूरा नहीं किया गया तो रियासत गिर एहतजाज किया जाएगा। यहाँ पर एसडीपीआई कर्नाटका लीडर्स ने अपने कई सारे मुतालिबात रखे। जी हाँ, कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए मौजूदा कांग्रेस हुकूमत से कई सारे मुतालबे किए गए, जैसे कि कर्नाटका के शेड्यूल कास्ट के लिए इंटरनल रिजर्वेशन फौरी लागू किया जाए, कांटाराज कमीशन रिपोर्ट को अवाम के सामने पेश किया जाए और उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, मुसलमानों के लिए 2B रिजर्वेशन को बहाल किया जाए और इसको 8% तक बढ़ा दिया जाए। साथ ही नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि ये जाथा जब बेलगाम के स्वर्ण सौदा के करीब पहुंचा तो हजारों कारकुनान ने प्ले कार्ड्स को डिस्प्ले करते हुए धरना दिया और मुतालिबात के नारों से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई। लिहाजा हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ कर्नाटक HC महादेवप्पा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और स्टेज पर आकर जाथा की मुतालिबात की समाअत की और तमाम लीडर्स को यकीन दिलाया कि आइंदा काबीना के इजलास में इन मुतालिबात पर संजीदगी से गौर करके उन्हें पूरा किया जाएगा। साथ ही नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि हाल ही में अमित शाह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पर चेंबर में भरे पार्लियामेंट में एक ऐसे गलत अंदाज में टिप्पणी की, कुछ ऐसे अल्फाज कहे कि जिसको सुनना शायद ही कोई सच्चा हिंदुस्तानी पसंद करे। अमित शाह ने कहा कि अब ये फैशन हो गया है कि अम्बेडकर 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 कहना। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। लिहाजा अमित शाह की इस बात पर एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी और शोला बयान लीडर सैयद अलीम इलाही ने कड़े अंदाज में मजम्मत करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। अमित शाह के डॉक्टर BR अम्बेडकर पर दिए गए इस बयान पर सैयद अलीम इलाही ने कहा, अम्बेडकर का नाम लेना बीजेपी समझती है ये फैशन है। शर्म आनी चाहिए अमित शाह जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को। आज आपने जो पार्लियामेंट में अंबेडकर जी की जो तौहीन की, जो डिसरेस्पेक्ट की है, ये बहुत ही शर्मनाक है, ये बहुत ही कंडेमनेबल है और अमित शाह को पूरे देश से माफी मांगना है, क्योंकि अंबेडकर का नाम लेना इसका मतलब सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म
को प्रमोट करना जैसा है, ना कि आपकी तरह हमेशा बीजेपी और आरएसएस संघ परिवार के लोग अंबेडकर से नफरत किया करते थे, अंबेडकर के पुतले जलाया करते थे और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करते हैं। ऐसे लोग क्या खाक अंबेडकर की इज्जत करेंगे? ये बाबा साहेब के खिलाफ थे और रहेंगे। इसीलिए हमें और आपको समझना है, बाबा साहेब अंबेडकर की जो तौहीन अमित शाह ने की है, इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी और आरएसएस संघ परिवार की सोच कितनी घटिया और कितनी बेकार है। यूं तो आमतौर पर वो जानवर जो कि आवाम पेड़, जंगल या जू में या खास जगह पर देखने की आदी होती है, वही जानवर आजकल शहर के रेलवे स्टेशन पर आवाम के बीच चलते फिरते, इधर से उधर कूदते घूमते हुए दिखाई दे तो कुछ अजीब महसूस होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंदरों की, जो कि कभी कभार पेड़ों पर मदारी के साथ या फिर जू में देखे जाते हैं। वो बंदर अगर आवाम के बीचों बीच रेलवे स्टेशन में दिखाई दे तो कैसा लगेगा? नाजरीन, तक ये खबर हम रायचूर शहर से पहुंचा रहे हैं। इन दिनों रायचूर शहर के रेलवे स्टेशन पर कई सारे बंदरों को देखा जा रहा है। न सिर्फ रायचूर के रेलवे स्टेशन पर बल्कि आसपास के कई और भी रेलवे स्टेशन और इलाकों में बंदरों की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से रायचूर शहर की आवाम के बीच डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। बेचारी आवाम सड़कों पर आवारा कुत्तों की दहशत और खौफ से पहले ही परेशान, डरी सहमी हुई थी। अब उनके डर में इजाफा करने के लिए रायचूर शहर में बंदरों की टोलियां भी बड़े शान से इधर से उधर कूदते दौड़ते भागते हुए दिखाई दे रही है। ये बंदर जिस तरह से दौड़ते कूदते फिरते हैं, इस वजह से रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों को अपने सामान के चोरी होने का अंदेशा भी बना रहता है, क्योंकि ये बंदर मुसाफिरों के सामान को कभी भी उठाकर ले जा सकते हैं। लिहाजा ऐसे हालात के पेश नज़र रायचूर शहर के रेलवे हकाम को चाहिए कि वो अच्छे कदम को उठाएं और फौरी इन बंदरों को पकड़कर शहर से दूर ले जाने के इंतजामात करें, ताकि मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर सुकून, चैन और राहत के साथ बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार करें और अपनी मंजिलों को पहुंचें। हैदराबाद शहर का जाना माना और मारूफ नाम RNS फार्मा गुर्दे और पित्ते के मरीजों के लिए नफा बख्श और बेहतरीन इलाज। RNS फार्मा पेश करते हैं डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन साहिबा की निगरानी में गुर्दे और पित्ते का बेहतरीन इलाज। पत्थर जल्दी न होने का मुकम्मल इलाज। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स। RNS फार्मा का खानदानी नफाबख्श इलाज का सिलसिला आज भी पूरी कामयाबी के साथ है जारी। पत्थर घुलकर होगा साफ और दवा पर भी कोई परहेजी की पाबंदी नहीं। साथ ही होम डिलीवरी अवेलेबल और यहाँ इरकान की दवाई फ्री मुफ्त दी जाती है। मजीद तफसीलात जानने के लिए आज ही राब्ता करें। RNS फार्मा, ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद। इन नंबर पर कॉल करके भी राब्ता कर सकते हैं 9390610436 या फिर 9703939436। मजीद देर न करें, गुर्दे और पित्ते की बीमारी से परेशान मरीज जल्दी RNS फार्मा से राब्ता करें। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।